ناظرین، دنیا بھر کے اخبارات میں خاص کر بزنس میگزینز میں ایک خبر کا بڑا چرچا ہے۔ بظاہر تو اگر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو عام سی خبر ہے کہ ایئر انڈیا نے ایئر لائن انڈسٹری، جس کو آپ سول ایویشن کہہ لیں یا جو بھی، اس کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل کی ہے، اور ایئر انڈیا نے فرینچ کمپنی ایئر بس اور امریکن کمپنی بوئنگ سے 540 ایئر کرافٹ 540 جہاز خریدے ہیں، جن کی مالیت 120 ارب ڈالر ہے۔ اس سے زیادہ ہوگی تقریباً، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو فگر ہے، لیکن یہ فگر اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بہت غلط ہے، اس میں 1-2% مائنس پلس ہو سکتی ہے۔ تو میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کا سارا قرضہ 130 بلین ڈالر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایئر انڈیا نے ایک ڈیل کی ہے، اور یہ سول ایویشن انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ اس سے پہلے امریکن ایئر لائن نے 460 غالباً ایئر کرافٹ خریدے تھے، اور 2011 میں، اور یہ ورلڈ ریکارڈ تھا کہ انہوں نے لارجسٹ یہ جو نمبر آف ایئر کرافٹ خریدنے کی یہ بڑی ڈیل کی ہے۔ تو اب یہ ریکارڈ ایئر انڈیا کے پاس آ گیا ہے۔ اچھا، اب ذرا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں۔ میرا کوئی ریکارڈ یا ایئر لائن کا یہ بتانا مقصود نہیں ہے، میں جو بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایئر انڈیا ہو یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA، ان دونوں کی ایک تاریخ ہے۔ ایئر انڈیا جو ہے 1932 میں قائم ہوئی، اور ٹاٹا گروپ نے قائم کی، اور اس کے بعد پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پرائیویٹائزیشن، اس کو نیشنلائز کر لیا 19 جب انڈیا اور پاکستان دو ملک بن گئے، تو 1953 میں اس کو نیشنلائز کر کے تو ایئر انڈیا کا نام دیا گیا، اور یہ گورنمنٹ کی ایئر لائن بن گئی، ایک اچھی خاصی ایئر لائن، وہ جو کامیاب ایئر لائن تھی۔ لیکن ایئر انڈیا بن کے تو وہ اس کی میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں۔ بظاہر یہ ایک ایئر لائن کی ہسٹری ہے، لیکن یہ دو ملکوں کی تاریخ ہے کہ ملکوں کی معیشت کس طرح اوپر نیچے جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم PIA کا بھی ساتھ ہی تذکرہ کرتے چلیں۔ تو PIA جس طرح کہ ایئر انڈیا جو تھی اس وقت اس کا نام تھا ٹاٹا ایئر لائن، تو یہ ٹاٹا گروپ نے قائم کی، تو اسی طرح PIA کا اصل نام اورینٹ ایئر لائن تھا۔ اورینٹ ایئر لائن دو بزنس مینوں نے، جو اس وقت کے لیڈنگ بزنس مین تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ 1946 میں غالباً انہوں نے یہ ایئر لائن قائم کی، اور اس کا نام اورینٹ ایئر لائن رکھا گیا۔ پھر 1955 میں اس کا نام PIA رکھا گیا، اور میجر شیئر پاکستان گورنمنٹ نے خرید لیے۔ تو یہ دو ایئر لائنوں کا سفر شروع ہوا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ جب انڈیا اور پاکستان دو ملک بن گئے، تو اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان امریکن گروپ میں، آپ سمجھیں، یا امریکن کیمپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ چلنے کا جو فیصلہ کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کیپٹلزم کے ساتھ چلنا ہے، امریکن نظام حکومت نہیں، نظام معیشت، جو پوری دنیا میں جتنے بھی کامیاب ممالک ہیں اس وقت تک، یا جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، انہوں نے امریکن سسٹم اڈاپٹ کیا، جو اصل میں اسلامی سسٹم ہے، کہ سود نہیں، سود کی معیشت نہیں، کیپٹلزم کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سرمایہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کے تو ایک کمپنی بن جائے، اور وہ کمپنی بزنس کرے، اور نفع اور نقصان اس میں شامل ہوتا رہے، اور نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کمپنیز چلتی ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کی جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، آپ فیس بک لے لیں، مائکروسافٹ لے لیں،
सिटी बैंक ले लें, मर्सिडीज़ ले लें, BMW, टोयोटा, आप दुनिया की किसी कंपनी का नाम लें, अभी मैंने बोइंग का जिक्र किया, अमेरिकन जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, या एयरबस फ्रेंच कंपनी का नाम लिया, ये सब शेयर होल्डिंग कंपनीज हैं, इसका उनका कोई एक मालिक नहीं है। इसमें हज़ारों लाखों बल्कि कई कंपनीज में तो करोड़ों लोग शेयर होल्डर हैं। तो नाजरीन, अब जो मैं आपको जो नुक्ता मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि बज़ाहिर तो ये दो एयरलाइन का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, एयर इंडिया का और PIA का, लेकिन आप देखते जाएं कि ये दो मुल्कों की मईशत की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, डिटो कॉपी जिसको कहते हैं, इस तरह है। अब देखें, जब पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में चला गया तो आप देखें पाकिस्तान तरक्की, उस वक्त आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान और PIA किस तरह तरक्की कर रही थी। PIA की अचीवमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो आप खुद भी रिसर्च करके देखें, एयर इंडिया से बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट थी PIA की। सबसे बड़ी तो मैं, आप सबको पता है कि एमिरेट्स एयरलाइन जो इस वक्त दुनिया की गालबन पहली या दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसको कायम ही PIA ने किया। और अभी जब हम जिक्र कर रहे थे बोइंग का, तो जब बोइंग ने अपना पहला 777 एयरक्राफ्ट तैयार किया तो जो पहला कस्टमर था वो PIA था। और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि PIA ने हांगकांग से लंदन तक 22 आवर 22 घंटे और 22 मिनट की वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, मैं लार्जेस्ट क्या गया, तवील तर, सबसे तवील नॉन स्टॉप फ्लाइट PIA के पायलट ने, PIA कंपनी ने हांगकांग से लंदन तक, ये कारनामा भी PIA के पास है। मतलब आप समझें कि एक आज़ाद है। इसी तरह PIA के और बहुत सारी अचीवमेंट, PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में उसका शुमार होने लगा। लेकिन फिर बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ मुल्क था और PIA तरक्की करती हुई एयरलाइन, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गए और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसने सब कुछ जो अदारे चल रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक चल रहे थे, दूसरे अदारे, उन सब को नेशनलाइज कर लिया और उसका असर PIA पे भी बहुत बुरा पड़ा और PIA का, वो कहते हैं ना, तबाही का सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, आप इसके साथ साथ मैं इंडिया का भी करता चलूँ। इंडिया में दूसरी तरफ इंडिया ने जाना शुरू किया। पाकिस्तान देखें, इंडिया ने गलत फैसला किया कि उन्होंने कम्युनिज्म की मईशत के ऊपर या रशिया का साथ देने का फैसला किया आज़ादी के फ़ौरन बाद, और आप देखते हैं कि 90 तक हिंदुस्तान गरीब तरीन ममालिक में उसका शुमार होता था और पाकिस्तान जो था वो उसकी मईशत बेहतरीन मईशतों में उसका शुमार होता था। अच्छा, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कैपिटलिज्म की तरफ आना शुरू किया, अमेरिका का साथ दे, अमेरिकन निज़ाम मईशत को अपनाया। तो देखें कि इंडिया में बेहतरी आनी शुरू हो गई और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये आज जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एयर इंडिया की है। एयर इंडिया, हमने बड़ी कोशिशें की कि PIA को दोबारा प्राइवेटाइज कर दिया जाए। एयर इंडिया ने बड़ी कोशिशें की, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिशें की कि एयर इंडिया का भी बुरा हाल था, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया जाए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक तरह का ही निज़ाम हुकूमत है, तो उनको भी बड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। मैं कहूँगा कि फरवरी या मार्च पिछले साल 2022 में कि उन्होंने एयर इंडिया को दोबारा प्राइवेटाइज कर दिया। और फिर देखें कि ये उसने इत्तेफाक कि टाटा ग्रुप ने उसको ख़रीद लिया। फिर जिसने ये एयरलाइन कायम की थी, उसी ग्रुप ने
2022 में इस एयरलाइन को दोबारा ख़रीदा। अच्छा, जब उन्होंने दोबारा ख़रीदा इस एयरलाइन को और अभी 1 साल हुआ है, देखें 1 साल के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आई है कि सिविल एविएशन या एयर इंडस्ट्री जितनी भी है, इसकी तारीख की सबसे बड़ी डील एयर इंडिया ने की है। और एयर इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनने जा रही है। ज़ाहिर है इस वक्त उन्होंने डील की है और उस डील का ये नतीजा है कि पूरी दुनिया में एयर इंडिया के चर्चे हैं। दुनिया के 2 बड़े जो मैन्युफैक्चरर हैं जहाज़ बनाने वाली कंपनीज, उनके साथ उन्होंने 120 अरब की डील की। अच्छा, अब इसके आप देखें और PIA का हाल देखें कि अब मैं दिल नहीं कर रहा कि बताने को कि क्या हाल है PIA का। अब कल की खबरें देखें, पिछले हफ्ते की खबरें देखें कि क्या हाल है PIA का। ये ईमानदारी की बात है कि दिल नहीं कर रहा कि मैं जिक्र करूं कि जो हाल है। अच्छा, एयर इंडिया का मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जाहिर है एज ए पाकिस्तानी मैं तो चाहता था कि जो PIA है इसके पास ये रिकॉर्ड होता, लेकिन क्या करें कि ये हकीकत ये है कि एयर इंडिया ने जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपना के और राइट डिसीजन लेके दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनने जा रही है, और PIA उतनी ही बड़ी जो बर्बादियों या जो होते हैं नाकामियों के गड्ढे में गिरने जा रही है या गिर चुकी है। अच्छा, अब नाजरीन ये ज़ाहिर 2 एयरलाइनों का मैंने कंपैरिजन किया। अब अगर आप 2 मुल्कों की मईशतों का हाल देखें तो बिल्कुल दूसरे अदारों में भी इसी तरह है। कोई इंडियन हमसे ज़्यादा लायक नहीं, कोई इंडियन हमसे ज़्यादा जीनियस नहीं। कोई इंडियन ने क्या किया है कि वो निज़ाम मईशत जो हमने आज़ादी के फ़ौरन बाद हमने अपनाया था, उन्होंने वो अपना लिया है। और हमने वो तजर्बे कर के हमने जो राइट डिसीजन हमारे बुज़ुर्गों ने लिया था, आज भी बड़े कई नईम हकीम कहते हैं कि लियाकत अली ने बड़ा गलत फैसला किया जी कि ये अमेरिकन कैंप में चले गए। तो ये जज्बाती बातें होती हैं। हकायक जो हैं वो किसी जज्बात के मुताज नहीं होते। हकायक कोई जज्बाती हो या मोतदिल मजाज, सबको कबूल करने पड़ते हैं। हकीकत इस वक्त ये है कि इंडियन इकानमी आप देखें, उनके पास रिज़र्व है इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज है उनके पास पड़ा हुआ, वो कहते हैं कि 600 अरब से भी ज़्यादा का है। गालबन 660 कोई कह रहे हैं, 670, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 अरब डॉलर हैं, और वो भी मांगे तांगे के हैं। तो नाजरीन, होना क्या चाहिए, जो हमारे हर व्लॉग का ये होता है, इस सारी हिस्ट्री बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि होना क्या चाहिए। दुनिया में आप यकीन करें कोई और निज़ाम मईशत नहीं है जो इस वक्त दुनिया में, इवन हम चाइना की मिसालें देते हैं, जब चाइना कॉरपोरेट चाइना बना, जब कैपिटल इकॉनमी बनी चाइना की, निज़ाम मईशत उन्होंने अडाप्ट किया और चाइनी कंपनीज दुनिया में छा गई। इसी तरह टर्की को देखें, मलेशिया को देखें, इवन अरब मुल्कों में जिनके पास पेट्रो डॉलर हैं, वो भी इसी निज़ाम मईशत के ऊपर चलते हुए वो कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। एमरेट एयरलाइन में वो सेम यही सक्सेस स्टोरी है। अब दूसरी बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करता हूँ। अगर पाकिस्तान ने, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, वो है मईशत, अगर हमने अपनी मईशत ठीक करनी है तो ये नए आइडियाज़, नए तजर्बे, इन सब को छोड़ना होगा, और एक ही निज़ाम मईशत है पूरी दुनिया में, कैपिटलिज़म, उसको अपनाना होगा। और पाकिस्तान या PIA या दूसरी पाकिस्तान की कंपनीज या बैंक फिर दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, नंबर टॉप जो कामयाब तरीन अदारों की फहरिस्त में आ सकते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।